वहाँ पे है तो आई वुड से सबसे ज्यादा सोल में है। सोल में हर इंसान बिल्कुल परफेक्ट ही रहता है एंड उनको बस अपनी लाइफ से ही मतलब है। मतलब जो हम के ड्रामा देखते हैं कि वहाँ पे परफेक्ट बंदे, परफेक्ट लोग, परफेक्ट बंदियां, पूरा सोल ही उनसे भरा हुआ है। तो मेरे ख्याल से के ड्रामा के डायरेक्टर्स को दिक्कत ही नहीं होती होगी किसी इंसान को उठाने में। तो इफ यू आर प्लानिंग टू विजिट कोरिया एंड आपको लगता है कि आपके साथ रेसिज्म नहीं होगा तो जरूर होगा, बट आप उसको लेके इतना घबराओगे तो पक्का होगा। यहाँ पे पैसे मांगे तो क्या ना थका हुआ होता है, तो पानी बोल कहते हैं इनको पैसे मत दो, अगर एक बार दोगे तो बार बार देना पड़ेगा, सबको देना पड़ेगा। तो इस टाइम एक्चुअली समझ लो बात को कि प्राइम टाइम पे आ रहा है, कोरिया के टीवी पे आ रहा है और इंडिया को ऐसे दिखाया जा रहा है कि पैसे मांगने पे कि ये कांस्टेंट है, हर एपिसोड में कांस्टेंट है। तो सच में बुरा लगा मुझे, कल बुरा लगा कि यार ऐसे नहीं करना। में जो प्रॉब्लम्स है, जो डार्क साइड्स है, उनके बारे में पता है कि आपको ये पता है कि साउथ कोरिया में जो सुसाइड्स है दुनिया में सबसे ज्यादा होता है, या फिर साउथ कोरिया एक अनहैप्पीस्ट कंट्री है? क्या आपको ये पता है कि साउथ कोरिया में होमलेस लोग भी होते हैं जो -20 -30 में ना, मतलब टिटूट की ठंड में बाहर सोते हैं? अगर आप साउथ कोरिया में सच में इंटरेस्टेड है, सच में जानना चाहते हैं साउथ कोरिया को, या फिर सच में आना चाहते हैं साउथ कोरिया, तो ये वीडियो जो है एंड तक देखिए, क्योंकि इस वीडियो में आपको साउथ कोरिया के कुछ शॉकिंग डार्क साइड्स के बारे में बताऊंगा जो अभी भी एग्जिस्ट करते हैं। Form or type of racism or discrimination while living in Korea. When we go for shopping, when we take look at the dresses and all, then they be like, they come very fast, like they'll be sitting and relaxing. They just come dash out and they're like, dusting. Okay, I'm not buying. 다르고 그러다 보니까 조금 한국인이랑 다르다라는 고정관념이 있는 것 같아요. You don't know anything. They're being racist to another Asian country. They're just rules. They're acting like a white person, but they're not. They're just Asian. Like this, anything racist happen to you? It happened to me, of course, yes. Because I'm half Korean. My friend was good. He have another friend and he's like, oh, where's this guy? He's Thai man, and then I got big racist after that. Like so quick immediately, and I was like, what the fuck? You have to look like that. Not like the old Korean. Namaste, subscribers. This is Korean Latka. Many Indians say Korea is my idol country, but the truth is Korea looks only nice, but it doesn't in reality. Korea is famous and also well known for highest suicide rates and lowest birth rates among OECD countries. And nowadays it has become a trend: no marriage, no child. This is because Koreans really believe Korea is like hell, and we actually call our country as Hell Korea. Let me introduce the reasons why. First one, the gap between the rich and poor. When you see this picture, do you think this represents the gap between the rich and the poor well? If yes, you misunderstood. Don't get shocked. The old apartment is 250 million rupees. The luxurious one is 500 million rupees. I'm telling no lies at all. Nahi, I think this explains already enough. And the second reason, everything is so expensive in Korea. You have to pay 500 rupees to get tanch aloo. Got it? And you know the price of aloo in India, right? Moreover, we have to pay at least 700 rupees to take a proper meal. And in India, we don't have to pay even the half of the price to take a proper meal. Third one, low employment rate. It is very difficult to get a job in Korea. Even Korean elites fail to get a proper job, and it is closely related to high suicide rates. ऐसा की एक्ट्रेस जैन चोयू अपने अपार्टमेंट के अंदर मरी हुई पाई जाती है और ये पता लगता है कि उन्होंने अपनी जान ली है। तो जाने से पहले उन्होंने एक लेटर लिखा था और इस लेटर के अंदर उन्होंने इस इंडस्ट्री के बारे में ऐसी बहुत सारी चीजें बताई थी जिसके बारे में लोगों को कोई अंदाजा ही नहीं था। इस लेटर के अंदर वो ये बताती है कि उन्होंने के-पॉप कंपनी के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जिसके अंदर उन्होंने उम्मीद करी थी कि वो एक सक्सेसफुल के-पॉप स्टार बन जाएगी, मगर उनका ये सपना अधूरा रह जाता है क्योंकि ये कंपनी उनको एक प्रोडक्ट की तरह यूज करती है और सालों तक उनकी कंपनी ने उनको फोर्स किया था कि वो बहुत ज्यादा अमीर और पावरफुल लोगों के साथ सोए। यहाँ तक कि इस लेटर के एंड में तक उन्होंने ये बताया था कि इस कंपनी ने उनको इतना प्रेशराइज किया कि उनको 31 लोगों के साथ 100 बार से भी ज्यादा बार सोना पड़ा था। सिमिलरली कई बार तो ऐसा होता है कि फीमेल के-पॉप ट्रेनीज को फोर्स किया जाता है कि वो अमीर इन्वेस्टर्स के साथ इन्वॉल्व हो। जैसे कि साल 2017 के अंदर एक कंपनी के सीईओ को अरेस्ट किया गया था क्योंकि उसने अपने बिजनेसमैन दोस्त को 4 लड़कियां जो ट्रेनी थी उनको ऑफर किया था। अब यहाँ पर आप सोच रहे हो कि ये सारी चीजें सिर्फ फीमेल के साथ होती है, मगर ऐसा नहीं है क्योंकि लड़कों के साथ भी कुछ कम नहीं होता। नवंबर 2022 में के-पॉप बैंड ओमेगा एक्स के 11 मेंबर्स एक कोर्ट केस जीते और ये जो कोर्ट केस था ये उन्होंने अपनी कंपनी स्पायर एंटरटेनमेंट के खिलाफ किया था। तो ये जो 11 मेंबर्स है उनका ये कहना था कि उनकी कंपनी की जो सीईओ थी वो अक्सर उनको वर्बली अब्यूज करती थी और इसके अलावा उन सारे के सारे मेंबर्स को फिजिकली भी एक्सप्लॉइट किया जाता था। अब ये जो इंसिडेंट है इससे एक बात तो सामने आ जाती है कि यहाँ पर जो एक्चुअल चीज है वो मेल और फीमेल के बीच में है ही नहीं। यहाँ पर जो एक्चुअल प्रॉब्लम है वो है पीपल विद पावर और पीपल विदाउट पावर के बीच की। क्योंकि अगर आप इन सारे केसेस को बहुत ही ध्यान से देखोगे तो अक्सर जो लोग पावर में है वो उन लोगों का मिसयूज कर रहे हैं जो कि अभी पावर में नहीं है, जो कि बहुत ही ज्यादा कमजोर है। अब यहाँ पर सोचने वाली बात एक और है कि अगर के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर इतनी ज्यादा खराब चीजें हो रही है तो आखिर वहाँ की गवर्नमेंट इस चीज को सुधारने के लिए कुछ कर क्यों नहीं है? तो अगर गवर्नमेंट की बात करिए तो साल 2009 के अंदर साउथ कोरिया की गवर्नमेंट ने एक एक्ट इंट्रोड्यूस किया था और इस एक्ट के तहत वो ये चाहते थे कि उनके देश के सारे बच्चों को प्रोटेक्ट किया जाए। लेकिन इन सारी बातों के अलावा सच तो ये कि के-पॉप इंडस्ट्री के अंदर सुधार आने के लिए गवर्नमेंट एक्चुअली में कुछ नहीं करती है। पर आखिर ऐसा है क्यों? तो देखो इस चीज का जवाब भी आपको इस डेटा के अंदर मिल जाएगा। सन 1960 के अंदर साउथ कोरिया की जो जीडीपी थी वो थी $4 बिलियन, जो कि सन 2021 में बढ़ते बढ़ते $2 ट्रिलियन तक पहुंच गई। अभी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसके अंदर के-पॉप इंडस्ट्री का बहुत ही ज्यादा बड़ा रोल है। इनफैक्ट हर साल के-पॉप इंडस्ट्री करीब $10 बिलियन के आसपास कंट्रीब्यूट करती है इस इकोनॉमी के अंदर। जैसे कि अगर हम सिर्फ बीटीएस की बात करें तो सन 2018 की स्टडी के अकॉर्डिंग साउथ कोरिया की इकोनॉमी के अंदर सिर्फ बीटीएस ने $3.6 बिलियन का ईयरली कंट्रीब्यूशन किया था। और कई सारे एनालिस्ट का ये भी कहना है कि सन 2014 से लेकर 2023 तक जो बीटीएस का कोरियन इकोनॉमी के अंदर कंट्रीब्यूशन है वो है $29.4 बिलियन। अब इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट चीज है और वो है टूरिज्म। I was sad when I saw like these videos like of people saying like Koreans just want to hook up with foreigners, and it's embarrassing to say, but it does happen. There are some people who tend to think foreigners are an easy target or they just want the experience. I'm not gonna deny that.
It's something that we should work on. It's something we should be embarrassed of. But not everyone is like that. I don't like seeing, people generalize like, all Koreans are like that. Some people just want to be friends. Some people just, want to make friends from different countries, different culture. Not everyone wants to just hook up with you or, have a fling with you. You should be careful because there will be people just like anywhere else in the world. There will be people who are approaching you with the wrong intentions. But I think this is also what we should work on as Koreans to help, like give the right help to the people who's been in this situation, if they've been assaulted or if they had a bad experience. I think we also need to kind of prepare a system to hear them and to actually help them. And then maybe this kind of misperceptions won't, spread too much. इंडिया में से एक टूरिस्ट ऐसा जरूर होता है जो कि वहां पर जाता है सिर्फ के-पॉप इंडस्ट्री के चलते और इस पॉपुलैरिटी के चलते साउथ कोरिया के-पॉप इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हुए एक सॉफ्ट पावर को एक्सरसाइज करता है जिसके चलते वो पूरी दुनिया के अंदर अपना इन्फ्लुएंस मजबूत कर पाते हैं। पर ये सारी चीजें जो भी चीजें ये लोग कर रहे हैं ये सब कुछ एक कॉस्ट पर आता है और वो कॉस्ट है इन छोटे छोटे बच्चों की जिंदगी। और यही चीज बहुत ही खराब बात है। यहाँ तक कि बहुत सारे आर्टिस्ट को सालों तक एक्सप्लॉइट किया जाता है और तब भी इन आर्टिस्ट को ना तो पैसे मिलते हैं और ना ही उतनी फ्रीडम। और इतने सालों में कई सारे के-पॉप आइडल्स ने आकर बताया कि उनको किस तरीके से डिप्रेशन और काफी सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज का सामना करना पड़ता है। तो कुल मिला ये कि इंडस्ट्री बाहर से देखने में जितनी ज्यादा फैसिनेटिंग लगती है, जितनी ज्यादा अमेजिंग आपको लगती है, उतनी अमेजिंग है नहीं। इस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी कई सारी चीजें जिसके बारे में लोग बात नहीं करते क्योंकि बहुत मुझे जहाँ तक लगता है कि सच है क्योंकि जो लड़के होते हैं ना उनकी रियल पर्सनैलिटी कोरियन बंदे की रियल पर्सनैलिटी जो क्लब्स में दिखती है तो रशियन जो थी बहुत सुंदर होती है। तो उन्होंने ना वो लड़का जब इस लड़की से पूछा कि मतलब वन नाइट के लिए पूछ रहा था और कह रहा था मैं जितने पैसे दूंगा तो लड़की ने मना कर दिया। क्लब की बात है ये। और फिर ना लड़का क्या कर रहा है क्योंकि हम फ्रेंड्स बन जाते हैं तो लड़का जो है लड़की के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है। क्लब में मतलब ड्रिंक्स थोड़ी महंगी होती है तो लड़का जो लड़की के लिए ड्रिंक्स खरीद रहा है वो दोनों ड्रिंक कर रहे हैं वगैरह। फिर उसी ड्रिंक के चक्कर में ना लड़का ना लड़की से क्वेश्चन पूछते कहाँ रहती है ऐसे वैसे 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 वो सब पूछ के ना फिर वो लड़का एक दिन लड़की के घर ही पहुंच गया था क्योंकि लड़की जब डॉमेट्री में नहीं रहती है वो बाहर रहती है तो वो घर ही पहुंच गया ना। मतलब लड़की बहुत शॉक हो गई थी। उसके बाद उसको घर चेंज करना पड़ा अगले दिन ही। मतलब बहुत फटाफट हुआ उसके बाद उसकी हेल्प की मतलब घर ही ना हो जाऊँ क्योंकि मुझे लाइट स्टिक वगैरह भी खरीदनी थी तो मुझे जल्दी जाना था। तो ना आई थिंक उसे 1-2 हफ्ते पहले वहाँ पे गई थी जा रही थी मतलब जा रही थी गई नहीं थी पहुंच नहीं पाई क्योंकि बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेशन हुई थी मतलब समझ नहीं आ रहा था कहाँ जाऊँ। तो ना ऐसा हुआ कि जब मैं जा रही थी ना पता नहीं बीच के स्टेशन से ना किसी ने मतलब मुझे फॉलो करना शुरू किया। तो मैं पहले तो शो में कि मुझे कोई बंदा फॉलो करेगा मैं इतनी दिखती हूँ ऐसा करना नहीं चाहिए। मतलब मुझे क्यों इतना मतलब अपनी खूबसूरती में मुझे इतना यकीन नहीं था मतलब अब कुछ ज्यादा यकीन है। तो उसने मुझे फॉलो करना शुरू किया। एक टाइम पे ऑफकोर्स लड़की होती है उनकी एक अलग ही सेंस होती है जो ये सब जज कर लेती है। फिर उसके बाद मैं आगे गई जाती रही मतलब मैं ना चेंज कर रही थी कभी इस साइड वाली ले रही थी कभी इस साइड वाली ले रही थी क्योंकि मैं खुद ही बहुत कंफ्यूज थी कि कहाँ जाना है। तो वो भी ऐसे ही कर रहा था। फिर एक टाइम ऐसा आया कि ना मैंने ना जैसे मैं बीच में रुक गई क्योंकि मुझे लगा कि शायद मैं गलत सोच रही तो मैं बीच में रुक जाती हूँ। वो बंदा भी बीच में रुक गया। फिर मैंने ऑपोजिट साइड में मेट्रो ली फिर वो भी ऑपोजिट साइड में उसने मेट्रो ली और क्योंकि जैसे मैं इस गेट पे खड़ी हूँ वो अगले गेट पे खड़ा है और वो ऐसे खड़ा है। मतलब हम लोग जब बस में करते हैं ऐसे करते हैं ना उसने इसको घुमा के ऐसे खड़ा हुआ है मतलब साफ पता लग रहा है आई कॉन्टैक्ट भी हो रहा है। तो वो चीज मैं बहुत डर गई थी कि फॉलो वाला क्योंकि ना उस टाइम पे कोरिया में ना 2-3 केसेस थे जो बहुत ही मतलब चढ़े हुए थे। 3 केसेस मतलब उस टाइम मैंने न्यूज सुनी थी। एक ना बहुत पुरानी न्यूज थी कि कोई बंदा किसी को फॉलो कर रहा था और उसके घर तक चला गया था। अगर वो मुझे वीडियो मिलेगी तो मैं उसमें शेयर भी करूंगी बट आप खुद ही देख सकते क्योंकि वो बहुत ज्यादा केस मतलब चला था कोरिया में। वो वीडियो दोबारा वायरल हो रही थी। दूसरा हुआ था कि ना कोई पब्लिक वॉशरूम में किसी लड़की को मार दिया था तो वो भी मतलब बहुत ज्यादा मैंने कहा ओह माय गॉड पब्लिक वॉशरूम में भी कर देते हैं। और थर्ड हुआ था कि ना 20 साल का लड़का 20 साल की लड़की मतलब कोरियन एज में 19 ईयर्स का तो वो दोनों फ्रेंड्स है बट मैं वो नहीं इंक्लूड करूँगी स्टोरी में। ये न्यूज स्टोरीज है मैंने आई थिंक घर वालों को भी नहीं बताई है तो 2 मैं शेयर करूँगी अपनी पर्सनल स्टोरीज जो यहाँ सोल के पास भी है। मतलब यहाँ आने के बाद देखो मैं कभी नहीं हुई क्योंकि मैं वहाँ पे हमेशा अक्षय संदीप रोहित भैया ये सब 4 लोगों के साथ किसी न किसी के साथ बाहर जाती थी तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ता था। लेकिन यहाँ आने के बाद अकेले जाती हूँ तो थोड़ा अजीब सा हो जाता है। तो फर्स्ट मूवमेंट से करती हूँ जब क्योंकि मैं फरवरी में यहाँ पे आई थी इस यूनिवर्सिटी में क्योंकि मार्च में मेरा सेशन स्टार्ट होना था। तो मुझे खाना मतलब खाना बनाना है तो मैं बाहर मार्ट में गई थी। मैं सामान खरीदा वो रात का टाइम हो गया था क्योंकि धीरे धीरे नए मार्ट में जाते तो कौन सी चीज कहाँ पे वो पता करना होता है। तो मैं वहाँ सामान लेके बाहर आई मैं बस स्टेशन पे बस का वेट करी थी। तो ना एक ना कोरियन आजोशी कह सकते आजोशी था मतलब जैसे 50s में था तो उसने ना पी हुई होगी। वो सैटरडे का टाइम था रात भी नहीं थी 7 बजे के करीब था उसने पी हुई थी। मैं ना साइड में थी मुझे पता लगा था कि इसने पी मैं साइड पर खड़ी थी। वो बंदा मुझे कहता मतलब इधर आ मतलब मैं कोरियन को ट्रांसलेट कर रही हूँ इधर आ। तो मैंने कहा हाँ मुझे लगा शायद मुझे कोई क्वेश्चन पूछने वाला होगा। मैंने कहा हाँ यस। तो वो कहता कि इधर बैठ मतलब उसके ना पास में इतनी सी जगह थी उसने कह रहा था इधर बैठ। मैंने कहा नहीं कोई बात नहीं। फिर उसके बाद उसने मुझे कहा कि मतलब तेरी शादी हो गई है कहाँ से आई है मुझे लगता है तो इंडिया से आई है वो मतलब इतना बोल रहा था। फिर मुझे लगा कि ये कुछ ज्यादा हो रहा है। मैंने कहा मैं कोरियन नहीं समझती हूँ। मैंने कहा मैं बिल्कुल भी मुझे कोरियन नहीं आता मैं इतनी टुट्टी कोरियन बोली उसको। तो फिर वो मतलब उसकी बातें मुझे समझ आ रही हैं बट मैंने उसको ऐसा किया कि मुझे कोरियन नहीं समझ आ रही। तो वो कह रहा है तेरा हस्बैंड कहाँ रहता है तेरा हस्बैंड इंडिया रहता है वगैरह वगैरह करके मतलब कह रहा था कि हम मेरा कार है मेरे कार में चलेगी ऐसे वैसे। मैं थोड़ा डर गई तो फिर ना मैंने कपड़े ऐसे पहनती हूँ मतलब थोड़े बैगी कपड़े। तो ना मैं ठंड का टाइम पे मैंने ऐसे कर दिया था। उस बंदे ने पता क्या किया उसने ऐसे मेरा हाथ बहुत जोर से 2 बार खींचा तो मेरा जो ये हाथ था ना वो अंदर यहाँ तक आ गया था। वो बहुत ही मुझे स्केरी लगा कि मतलब ये अपनी तरफ मुझे खींच रहा है। मैं बहुत ज्यादा डरी थी और ना रेड लाइट हुई ना क्योंकि बस स्टैंड जो रेड लाइट के पास थी तो रेड लाइट के पास ना वो गड्डियाँ थी गड्डियों से ना लोग शीशे उतार के देख रहे थे क्योंकि वो चीख रहा था वो बोल नहीं रहा था वो चीख रहा था। तभी मैंने उसे कहा मुझे बोलने नहीं आता मतलब इधर बैठ इधर आ ऐसे मतलब मेरी दुख रहे सुन मैं बहुत दुख हूँ मतलब अफायो या चादर ना आए मतलब बहुत दुखी लग रहा था बहुत पता लग रहा था बट उससे मेरा क्या रोल है। तो ना जब उसे खींचा मैं इतना ज्यादा डर गई ना और जब गड्डियों ने सिर्फ देख के ऊपर अपने शीशे उठा के ना मैंने कहा यार कैसे लोग हैं सोल के पास ऐसे लोग रहते कि किसी को मतलब ही नहीं है
उसके बाद फिर एक लड़की आई, उसको भी बस लेनी थी, बस आने में 3 मिनट रह गए थे, तो वो फिर उसको मैंने बताया था कि मुझे कोरियन नहीं आती, तो वो उस लड़की को, वो कोरियन थी, उसको बोल रहा है कि इससे पूछ कि इसका पति कहाँ रहता है, ये शादी हो गई है, ये यहाँ क्यों आई है, मतलब ऐसे वैसे पूछ रहा था। तो वो लड़की समझ गई कि इसने पी हुई है, उसने मुझे ये ट्रांसलेट किया कि ये कह रहा है कि कुछ भी नहीं, तुम बस करो। फिर वो दोबारा अपना हाथ उसने मेरी तरफ दोबारा खींचने के लिए बढ़ाया, मतलब उस बार मुझे ऐसे खींचना था क्योंकि मैं ऐसे खड़ी थी, ऐसे खींचना था, तो वो लड़की ने अपना ऐसे मतलब हाथ छोड़ा क्योंकि वो पास में खड़ी थी, फिर वो हम दोनों के बीच में आ गई। फिर हम दोनों ने फिर जो बस मुझे दिखी ना वही बस में मैं चढ़ गई जैसे एकदम आई थी, क्योंकि मैं बहुत डर गई थी। मुझे इतना भी दीवानी काम था कि मैं फोन कर किसी को, क्योंकि नेट तो नहीं था उस टाइम पे मेरे पास, बट फोन भी नहीं किया, और 7 बजे का टाइम था, मैं इतना डर गई। उसके बाद से मुझे अजोशी लोगों से बात करने में उस टाइम पे केसेस चल रहे थे, तो मुझे फॉलो वाला ना बहुत सिस्टम, मतलब मैं बहुत ज्यादा डर गई। तो उसके बाद फिर मैं बीच में ना यूनिवर्सिटी के पास होगी, वही बाजार वाला जगह था, वहाँ पे मैं एक दुकान में गई। ऐसे ना होने के बावजूद मैंने इतना कुछ ऑर्डर किया जो मैं नहीं भी खा सकती ना, मैंने उसको बोला कोई नहीं, तो मुझे सिर्फ ब्रेड ही पैक करके दे दे। फिर मैं वहाँ बैठ के काफ़ी देर तक मैंने खाया, मैं वहाँ घूमी, जब तक मैं उस लड़के की रेंज से दूर नहीं ना चलेगी। मतलब मैं यूनिवर्सिटी, वो वहाँ पे एक यूनिवर्सिटी थी, मैं उसी यूनिवर्सिटी के अंदर भी चली गई, मैंने उसको श्योरिटी दिला दी कि हाँ मैं यही यूनिवर्सिटी की स्टूडेंट हूँ। तो फिर मैं थोड़ा शांत हुई, मैं घर आई, मैंने अपनी फ्रेंड्स को मतलब बताया, अपने रूममेट को बताया, तब मुझे शांति मिली। लड़की कभी भी मतलब मेरे हाथ इतने ठंडे हुए पड़े हैं ना, मतलब पता नहीं दिख भी रहे बहुत ठंडे हुए पड़े हैं, ठंडा कैसे दिखेगा, पर ये स्केरी मोमेंट